Okay. So Aditya, what were you taught in last class? Could you tell me, please? Sure, sure. So last class it was about questions, 20 questions basically, what we can ask anyone. Okay. So we started with the like basic questions first. For example, alt is deine Vater, deine Brother, deine Mutter, Schwester. Wie heißt deine Familienname? Yeah. And sprechen Sie Deutsch? Sprechen Deutsch oder Englisch? Wo wohnst du? Wo wohnen Sie? Wo magst du? Unterrichst du? Wie alt sind Sie? Okay. Wo arbeiten? Danka. Yeah, good. Mamta, you tell me, what did you learn in last class? So questions, discussions, Speak loudly, Mamta, please. Are you okay? Are you healthy, wealthy? yes, sir. Yeah, tell me Yes, sir. loudly. Speak loudly. So basic questions. Okay, basic question, right. My dear friend, today's topic is article. Aditya, do you know something about article? Have you heard? Articles in English is a and the Very good. definite indefinite articles, negative articles. In German, do you know something about article? Have you heard? So with every noun, there's supposed to be one article, and so articles depend on the gender of the noun. So, for example, the, their, and das. Yeah. These are feminine, masculine, and neuter. Again, there are definite and indefinite articles. So, for example, if the, their, and das are definite articles, then indefinite would be ein, eine, and so on. Great, very good. You're good. And so I'm telling you, my dear friend, actually, in German language, article plays a vital role. With each noun, we must use article. While some exceptions are there, but noun requires always article. We have to use article, we have to know the article. There are two types of article, definite or indefinite, like in English. Definite is called bestimmt article, bestimmt. What do we say? Bestimmt. Tell me, Bhavana. Bestimmt article. And indefinite article is called unbestimmt article. Mamta, what do we say indefinite? Unbestimmt. Only testing. Yes. So whenever we talk about definite article, definite, you know, the, the. But in English, we say only the. But in German language, to describe the, we have 3 or 4 things. Like there, der, die, d, and das, does. So there, d, does. And all these are having the same meaning, the. तो द को बताने के लिए हम देयर का भी यूज करते हैं, डी का भी, डी आई डी का भी यूज करते हैं, और डी एस डस का भी यूज करते हैं, राइट. ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया. और इनडेफिनेट आर्टिकल में हम यूज करते हैं, राइट. अब क्या यूज करते हैं देखते हैं. आइन सुना होगा आपने, आईने सुना होगा आपने, EIN, EINE, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आज. So today our topic is article. So let us see what is written. आदित्य, ये क्या लिखा हुआ है बताएं प्लीज. म्यूट किया भैया. Sorry, das ist mein deutscher Professor, and नीचे लिखा है where is the these person पेयर जोन, पेयर जोन, पेयर जोन. पेयर, PER को बोलते हैं पेयर, SON को सब पेयर जोन. Where is these पेयर जोन का मतलब who is this person. ममता क्या लिखा हुआ है? Where is
दीजा पेयजोन, बोलिए तो प्लीज। Where is the visa pair zone? क्या बोलेंगे भावना, क्या लिखा हुआ है? Where is this पेयजोन, person? हाँ वे इस दीजा पेयजोन। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में हो जाएंगे अभी तो आगे देखते हैं। Der T ist natürlich für die Gesundheit. Gesundheit. Der T ist, the T is neutralisch. Neutralisch means the T is better for our health. Right. So air, और नीचे लिखा हो air jets auf dem Sofa. Air jets auf dem Sofa. He is sitting on the sofa. The sofa को विशेष sofa क्या बोलेंगे आदित्य? sofa. तो air sits, हाँ बोलिए प्लीज। जिट्सन होता है जो जिट्सन, वो आपने सही बोला। जिट्सन वर्ब हो गया जिट्सन, तो उसी का ये कंजुगेटेड पार्ट हुआ एयर जिट्स। कंजुगेटेड, दिस इज कंजुगेशन पार्ट हो गया। हमने बोला भी होगा कंजुगेशन उस दिन, तो आगे चल के सिखाऊंगा उसी का कंजुगेशन। लास्ट टाइम कवर किया था हमने ये तो एस में टी लग जाएगा। यस यस, तो एयर जिट्स यहाँ पे हुआ। तो ऑफ डेम जोफा, ही इज सिटिंग ऑन द सोफा। टॉपिक आज का है डेयर आर्टिकल। If you say DER, the article is called masculine, my dear friend. इसीलिए आर्टिकल के पहले हमने आर्टिकल इज नाउन हुआ आपका, उसके पहले आई हैव यूज्ड देयर यूज किया है डेफिनिट आर्टिकल। इस सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर प्लूरल की बात करेंगे तो उसमें डेयर के बदले में DIE, इसको डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी आर्टिकल मीन्स दिस इज प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या हो गया आदित्य? व्हाट डज इट मीन सिंगुलर? देयर आर्टिकल। देयर आर्टिकल। और प्लूरल में क्या बोलेंगे? दी आर्टिकल। एक खास बात है, DIE, डी कुड बी यूज्ड एज अ फेमिनिन जेंडर आल्सो, राइट? मैस्कुलिन के लिए तो यूज करते हैं देयर, फेमिनिन के लिए भी यूज डी आल्सो, और न्यूटर के लिए भी यूज करेंगे जो आगे चल के बताऊंगा, राइट? डी। तो यहाँ पे प्लूरल में भी यूज करते हैं डी, और फेमिनिन के लिए यूज करेंगे डी, जो आगे चल के पढ़ेंगे। देयर आर्टिकल, देयर का मतलब होता है द, भावना इसका मीनिंग हुआ। DER का मतलब होता है द आर्टिकल। तो देयर, DER को क्या बोलेंगे? देयर आर्टिकल, राइट? तो दिस इज कॉल्ड बेस्टिम्ड आर्टिकल। क्या बोलेंगे? बेस्टिम्ड आर्टिकल मीन्स डेफिनिट आर्टिकल। इसमें आपके पास है यू आर हैविंग देयर, DER, देयर इज यूज्ड फॉर मैस्कुलिन जेंडर। और DIE को क्या बोलेंगे भावना? DIE D. या डी, क्या बोलेंगे ममता? DIE को D. डी। और आदित्य क्या बोलेंगे DIE को? डी। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डाई। Die. तो स्टूडेंट, इसको बहुत सारे स्टूडेंट को देखा डाई बोलते हुए, तो डाई ना बोल के इसको जर्मन में डी बोलते हैं। तो डी इज यूज फॉर फेमिनिन जेंडर, और थर्ड है DS, दस इज फॉर न्यूट्रल जेंडर। तो चलिए इंग्लिश में वी आर हैविंग मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर माय डियर फ्रेंड। बट जर्मन में कॉमन नहीं होता। हियर ओनली 3 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर, राइट? And in German, without an article, it is very difficult to identify any gender, any noun. So article is very, very important. Let's see next. Some rules are there. आप पूछेंगे सर डेयर, डी, डस जो आपने बोला है, वो डेयर को कहाँ कहाँ यूज करेंगे, डी को कहाँ पे यूज करेंगे, और डस को कहाँ यूज करेंगे, है ना? जैसे मान लीजिए आदित्य आप हैं DER, डेयर, तो डेयर तो मैस्कुलिन कहलाता है, यू नो वेरी वेल। जैसे आदित्य मैस्कुलिन हो गए,
भावना आप है, DIED, डी का मतलब क्या हो गया, फेमिनिन के लिए आ गया, भावना फेमिनिन हो गए। और न्यूटन में क्या आ गया, ममता, DAS, डस आ गया। तो आप तीनों है डेयर, डी, डस। अब आपने पूछा कि सर हमारा यूज कहाँ कहाँ पे होगा, है ना, डेयर का कहाँ यूज होगा, डी का कहाँ पे यूज होगा, और डस का कहाँ पे यूज होगा। तो लेट अस सी, सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, डेयर के बारे में बात करते हैं। तो डेयर इज यूज फॉर मैस्कुलिन पर्सन्स के साथ, देखना लिखा हुआ है, मैस्कुलिन एनिमल्स के साथ, प्रोफेशंस के साथ, वीक डेज में भी यूज, मंथ्स के नाम के पहले और डायरेक्शंस के नाम के पहले यूज होगी। एक खास बात है, NB स्टैंड्स फॉर नॉट हैव बीन, ध्यान दें, वी डोंट यूज आर्टिकल विद डेजिग्नेशन। जैसे आप कहते हैं ना, आई एम अ टीचर, आई एम अ प्रोफेसर, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे आदित्य। जैसे देखिए डियर फ्रेंड्स, ही इज अ पायलट, कैसे बोलेंगे इसको, ही इज अ पायलट को, इज पिलोट। पिलोट। अब यहां देखेंगे ईयर को बोलते हैं एयर, क्या बोलेंगे, आफ्टर 10 मिनट्स ये ऑफ हो जाएगा, तो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ER इज कॉल्ड एयर, एयर मीन्स ही। IST, ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है इज, तो ही इज। अब पायलट को कहते हैं पिलोट, ये डेजिग्नेशन हुआ, इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल यूज नहीं किया, एयर इज पिलोट। अच्छा ध्यान देंगे आदित्य, अगर आप पायलट हैं तो मैंने बोला आपके बारे में कि एयर इज पिलोट, राइट, ही इज अ पायलट। लेकिन अगर यही मैं भावना के लिए यूज करूं तो मैं बोलूंगा जी इज पिलोटिन। अच्छा, शी इज अ पायलट, तो शी को क्या बोलते हैं, SIE, क्या बोलेंगे, SIZ। अच्छा, SIE को क्या बोलेंगे ममता, जी बोलेंगे। जी। हाँ, और इज के लिए आता है ईस्ट, IST, जी ईस्ट, पिलोटिन। भावना एक बार आपको बेसिक चीजें मैं बता दूंगा बाद में, अभी पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन में बता दूंगा कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है, ओके सो सर। दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो जी का ओके मतलब सर। होता है शी, और ईस्ट का मतलब होता है इज, जी इज पिलोटिन, शी इज अ पायलट। अच्छा, यहाँ पे मैंने IN यूज किया है आदित्य, बताएंगे कुछ इसके बारे में। तो फीमेल जेंडर में IN यूज किया जाता है कॉन्जुगेट फीमेल एंड में। जेंडर में। जब भी आप डेजिग्नेशन यूज करते हैं तो मेल में तो आपने देखा पिलोट लिखा हमने, बट मेल से जैसे फेमिनिन में यूज करते हैं उसमें हम IN यूज कर देते हैं, क्या यूज करते हैं, IN यूज करते आई हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर हमने बोला आदित्य हेयर, जैसे हमने बोला हेयर आदित्य ईस्ट प्रोफेसर, हेयर आदित्य ईस्ट प्रोफेसर, मिस्टर आदित्य इज प्रोफेसर, राइट। और यही मैंने बोला फ्राउ भावना ईस्ट प्रोफेसर इन, प्रोफेसर में IN लगा दिया हमने। तो फीमेल के साथ जो भी होगा प्रोफेसर होगा, उसमें IN प्रोफेसर इन हो जाएगा। तो जितने भी डेजिग्नेशन है आप देखेंगे उसमें IN का यूज किया गया। इसको नोट करते, इसको नोट कर लेंगे कॉपी, प्लीज प्लीज नोट डाउन। ही जब इसको आगे बोलेंगे बात करेंगे तो प्लीज नोट डाउन। ही जब पायलट को क्या बोलेंगे, ए इज पिलोट, और शी इज पायलट को क्या बोलेंगे, जी इज पिलोटिन। अब एक खास बात आता है ना ये फ्रेंड, अगर वी आर पायलट्स, अब ये प्लूरल है कि सिंगुलर है बताएं आदित्य, वी आर पायलट सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल हुआ। प्लूरल हो गया। इसमें हमने क्या लिखा है बताएं प्लीज, वी आर जिन पिलोटन। पिलोटेन, इसमें हमने EN यूज किया माय डियर फ्रेंड। तो अब क्या बोलना चाहेंगे आदित्य, फेमिनिन और प्लूरल के बारे में कुछ बताएं। फेमिनिन में एंड में जो सफिक्स आएगा वो IN होगा, और प्लूरल के केस में EN होगा। तो Yes. इन, अन, ये डिफरेंस हाँ, होगा। इन हो, याद रखिएगा
मैस्कुलिन से जब आप फैमिली बनाएंगे तो फैमिली में हमेशा आईएन यूज किया जाएगा। डेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ अभी मैं डेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे आप पायलट है, पायलट को बोलते हैं पिलोट, पिलोट से पिलोटिन हो गया। लेकिन हम सभी पायलट हैं तो वी जिंट, वी क्या बोलेंगे, वी का मतलब होता है हम लोग, WIR वी। SIND को जिंट, वी अच्छा डी को ट बोलते हैं, इसीलिए एस को ज कहते हैं और डी को ट कहते हैं। तो वी आर जिंट पिलोटन, वी आर पायलट। गॉट इट? I have written here also, use IN in feminine and EN in plural. Got it? Now come the point. यहाँ पे अभी आपने देखा माय डियर फ्रेंड, आई हैव रिटन एवरीवेयर, डेया भी लिखा है, डी भी लिखा है। अच्छा, स्टूडेंट अगर हैं आप, जैसे आप आदित्य, यू आर स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट है, राइट? तो मेल के पहले क्या होता है? DER आई हैव रिटन। DER से वी कुड आइडेंटिफाई कि मैस्कुलिन है ना? डेयर फॉर मैस्कुलिन के लिए यूज किया जाता है। और अगर यही हम यूज करें, स्टूडेंट, ममता भी स्टूडेंट है, तो इनके पहले डी यूज करेंगे, डी स्टूडेंट इन। देखा ना, IN यूज कर दिया। लेकिन अगर बोला जाए आदित्य की मिस्टर पाठक इज स्टूडेंट, कैसे बोलेंगे इसको? हेयर पाठक। अच्छा, पता है मिस्टर को क्या बोलते हैं? हेयर, Here, HERR, हेयर पाठक। इस्ट, yeah, स्टूडेंट, क्या बोलेंगे यहाँ पे? हेयर पाठक इस्ट स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट के पहले आर्टिकल यूज नहीं करें क्योंकि डेजिग्नेशन हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति के नाम के साथ यूज करेंगे तो यहाँ पे तो अकेला HD यूज कर दिया हमने, डे स्टूडेंट समझने के लिए। बट जब आप किसी व्यक्ति के नाम के साथ डेजिग्नेशन यूज करेंगे, हेयर पाठक इस्ट स्टूडेंट। और ममता के लिए क्या बोलेंगे? फ्राउ ममता। फ्राउ मीन्स मिश्र जी बोलते हैं और मिश्र भी बोलते हैं, दोनों के लिए। फ्राउ ममता इस्ट स्टूडेंटिन, क्या बोलेंगे? फ्राउ ममता, Frau. ममता इस्ट स्टूडेंटिन। FRAU, फ्राउ। फ्राउ का मतलब मिसेज भी होता है और मिस भी होता है। फ्राउ ममता इस्ट स्टूडेंटिन। Now let us see next one. Photographer, photographine। ममता बताए, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फोटोग्राफ एंड फोटोग्राफीन? ममता। So photograph masculine हो गया और photography feminine. लाउडली स्पीक, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए ताकि आपको याद रहे। So photograph बताइए मुझे। masculine हो गया और photography feminine. अच्छा, कैसे पता चला ये फेमिनिन है, ये बताइए आप। So DIE है ना, तो लास्ट में एट द एंड IN और यूज किया IN है। भी है last. हाँ, तो फोटोग्राफ एंड फोटोग्राफिन। तो एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे आप? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, हेयर पाठक इस्ट स्टूडेंट एंड फ्राउ ममता इस्ट स्टूडेंटिन। ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कुछ, या लिख दूं? समझ में नहीं आ रहा? Frau Mamta ist Fotografin. या फ्राउ ममता इस्ट फोटोग्राफिन एंड हेयर पाठक इस्ट फोटोग्राफ, है ना? फोटोग्राफ। ओके, नाइस। नाउ नेक्स्ट वन, पुलिस को व्हाट डू वी से आदित्य? पुलिस को क्या बोलते? पुलिस ऑफिसर, पॉलिसिस्ट, पॉलिसिस्ट, Polycyst. या एंड Polycyst. पॉलिसिस्टिन। So Aditya, tell me Poly. please with the example. Wo ist deine Polycyst? Okay. Miss, what does it mean? What's Bedote does? You told me wo ist deine polycyst. What does it mean? वो का मतलब क्या होता है आदित्य? Wo means where?
हाँ, तो वेयर इज Where- पुलिस ऑफिसर, यू वुड लाइक टू से, यही बोलना चाहते हैं ना? हाँ, कैसे बोलेंगे इसको? वो वेयर is इज, there, वो ईस्ट, where, वो is there policist, नहीं देर हमने पहले क्या बोला कि आर्टिकल दाइनर। में नहीं नहीं, जब डेजिग्नेशन यूज करेंगे किसी व्यक्ति के नाम के साथ तो आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ तो डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, लेकिन इसी को जब आप किसी व्यक्ति के साथ यूज करेंगे तो वहां आर्टिकल हटा देंगे। जैसे आपने बोलना है कि मिस्टर पाठक इज ए पुलिस ऑफिसर, कैसे बोलेंगे इसको? Herr Pathak is policist. देखिए यहाँ पे आपने यूज किया मिस्टर पाठक इज ए पुलिस ऑफिसर, तो विषय हेयर, देखिए हेयर का मतलब होता है मिस्टर, क्या बोलेंगे इसका? मिस्टर होता है। और फ्राउ का मतलब क्या होता है? Miss, Mrs. फ्राउ, फ्राउ का मतलब मिसेज भी होता है या इसका मतलब मिस भी होता है। गॉट इट? हमने बोला हेयर, हेयर, हेयर पाठक,